Hey, hello everyone. I'm audible, guys. Good evening, good evening. Hello, good evening, everyone. Am I audible? Great, great. So in today's doubt session, Shivam sir will be handling all the things. So as I introduced in the class, Shivam sir is 2x ICPC regionalist. He is 1900 plus in code CEFs, 1500 plus in code forces, and yeah, he will be introducing himself now. So yeah, here is Shivam sir. Yeah, so hello everyone. I am Shivam Pratap Srivastava. So as Avinash has said that I will be guiding you for this particular doubt solving session. So let me give you a brief introduction about myself. So during my college days also I was very much involved into competitive programming, and I have been to ICPC twice at the Amritapuri regionals and another time at the Kanpur regionals. I have also been double ICPC regionalist at the IIT Bombay campus. And apart from that, my coding profiles are like I'm having a rating of 1900 plus on CodeCef, 1500 plus on Codeforces, and I am a knight with a rating around 1900 on LeetCode as well. So I'm in near the around top 5% on LeetCode as well. And I would be guiding you for this particular session. So I hope I am very much audible to you. So can you guys please confirm? Am I audible to you all? Yeah, I hope. Yeah, so let's get started with the doubts. So you might have studied the lectures related to the basics of Python, conditional statements, and loop. So we will be discussing the doubts regarding all of those concepts in this particular session. So yeah, let's get started with the doubts. Someone asked the last levels. Yeah, so let me just open it. So I think we can do it lecture by lecture. So let me open the last level first, then we can, I think, do it level by level. Yeah, can you please share the question link if possible? Otherwise, I will just ask you the lecture number of the last levels. All right. Yeah, so this is the question. So in a video game, uh, there is a set which is playing the game, and there are X levels remaining in this particular game. And this game basically is very long. So the chef has to take some intervals in between to protect his eyes against the eye strain. तो बेसिकली इसमें एक सेफ है जो एक गेम खेल रहा है जिसमें एक्स लेवल्स हैं. तो मैं इसको बना लेता हूँ. सो बेसिकली इस प्रॉब्लम में एक्स लेवल्स हैं. सो फॉर एग्जांपल हियर आर 5 लेवल्स. सो दीज आर 5 लेवल. हमें क्वेश्चन में दिया गया है देयर आर एक्स लेवल्स इन दिस पर्टिकुलर गेम. ऑल राइट. आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है. ठीक है. और हमें प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि एट ईच लेवल सेफ टेक्स वाई मिनट्स टू कंप्लीट इट. तो यहाँ पे फॉर वन लेवल टू बी कंप्लीटेड वी नीड वाई मिनट्स. ठीक है. सो देर आर टोटल एक्स लेवल्स एंड एक लेवल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है? वाई मिनट्स. ठीक है. और यहाँ पे सेफ थोड़े थोड़े ब्रेक्स भी ले रहा है. ब्रेक्स कब ले रहा है देखते हैं. टू प्रोटेक्ट आई अगेंस्ट द स्ट्रेन, सेफ ऑल्सो डिसाइड दैट एवरी टाइम ही कंप्लीट 3 लेवल्स ही विल टेक अ जेड मिनट ब्रेक फ्रॉम प्लेइंग. ठीक है. तो यहाँ पे दिया हुआ है कि हर 3 लेवल के बाद आफ्टर एवरी 3 लेवल्स द सेफ विल टेक अ ब्रेक. ठीक है.
जब भी हम 3 लेवल कंप्लीट कर लेंगे हम ब्रेक लेंगे। ऑलराइट, सो यहां तक सबको आई होप क्लियर है। जस्ट लेट मी चेक वंस, किसी को कोई डाउट है क्या? ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, या आई थिंक इट इज ऑल क्लियर। ठीक है, सो हमारे पास एक्स लेवल्स हैं, एंड एक लेवल को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास जो टाइम लग रहा है दैट इज वाई मिनट्स। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। दूसरी जो चीज दी गई है, आफ्टर एवरी 3 लेवल्स हम कितने मिनट का ब्रेक ले रहे हैं? जेड मिनट्स का। सो क्वेश्चन में दीज टू थिंग्स आर गिवन टू अस, और हमसे पूछा गया है कि टोटल जो टाइम है वो कितना लगेगा। ठीक है, सो एक तो चीज है कि हमें लेवल्स कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। सो इफ आई हैव एक्स लेवल्स एंड ईच लेवल टेक्स वाई मिनट्स, तो टोटल टाइम कितना मुझे लगेगा? व्हाट वुड बी द टोटल टाइम टू कंप्लीट ऑल ऑफ द लेवल? अगर हर एक लेवल पे वाई मिनट लग रहा है और देर आर टोटल एक्स लेवल्स, तो टोटल टाइम टेकन वुड बी एक्स इंटू वाई। ये तो मेरा एक टाइम हो गया जो मुझे लग रहा है। ठीक है, एक्स इंटू वाई सबको क्लियर है। अब मुझे निकालना है कि ब्रेक की वजह से मुझे कितना एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, कि जो मैं ब्रेक ले रहा हूं लेवल्स के बीच में उसमें कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, तो लेट से मैं यहाँ पे आपके सामने लेवल बना देता हूं। यहाँ पे एक बॉक्स एक लेवल को डिनोट करेगा। ठीक है, सो लेट मी मेक द लेवल्स इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक, दिस इज माई लेवल 1, दिस इज माई लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, और मैं ब्रेक कहाँ कहाँ पे ले रहा हूं? हर 3 लेवल्स के बाद तो मैं यहाँ पे ब्रेक ले रहा हूँ, और मैं यहाँ पे ब्रेक ले रहा हूँ। पहले 3 लेवल्स मैंने यहाँ पे कंप्लीट किए, फिर मैंने ब्रेक लिया, फिर उसके बाद 1, 2, 3 और लेवल्स कंप्लीट किए, फिर मैंने यहाँ पे ब्रेक ले लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने ब्रेक ले लिया। यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो अगर मुझे एक्स की वैल्यू दी गई है कि एक्स मेरे टोटल लेवल्स हैं, तो आप बता सकते हो कि मैं कितने बार ब्रेक ले रहा हूँ? If X is given to me, can anyone tell me like what would be the number of breaks? So you guys are saying that it would be X by 3. You guys are saying it would be X by 3. ठीक है, ठीक है, आप ये बोल रहे हो X by 3, बट यहां पे आप ध्यान से देखो, यहां पे आप ध्यान से देखो, अगर मेरे पास 3 लेवल्स होते, अगर मेरे पास बस 3 लेवल्स होते, तो क्या मुझे कोई ब्रेक लेने की जरूरत पड़ती? अगर मेरा x=3 होता, तो क्या मुझे कोई ब्रेक लेने की जरूरत पड़ती? तो लेकिन जो आप फॉर्मूला बता रहे हो x/3, उससे तो वैल्यू 1 आती, जो कि गलत है, क्योंकि मैं बिना ब्रेक लिए कंप्लीट कर सकता हूं। x/3 इज गिविंग 1, बट इट इज इनकरेक्ट। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। इस बार हम 6 लेवल्स लेंगे। ठीक है, यहाँ पे टोटल देर आर 6 लेवल। ठीक है, यहाँ पे 6 लेवल्स हैं। फॉर्मूले से क्या आएगा कि मुझे 2 ब्रेक लेने की जरूरत है, बट डज दैट मीन कि यहाँ पे 2 ब्रेक लग रहे हैं? पहला ब्रेक मैं यहाँ पे लूंगा 3 लेवल कंप्लीट होने के बाद। यहाँ पे मैंने एक ब्रेक ले लिया। ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट पे मैंने ब्रेक ले लिया, और फिर मैं दोबारा काम करना स्टार्ट करूंगा, और उसमें मैं 4, 5, 6 को कवर कर लूंगा। दूसरे ब्रेक की तो जरूरत है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे ये सबको दिख रहा है कि दूसरे ब्रेक की जरूरत मुझे है ही नहीं। तो जो x/3 से जो वैल्यू आ रही थी, विच वॉज कमिंग आउट टू बी 2, that is not correct for this particular case. I hope this is clear to all of you. तो गलती हो कहाँ पे रही है? क्या मुझे कुछ सोच के बता सकता है गलती हो कहाँ पे रही है?
हाँ, आप में से कुछ लोग बोल रहे हैं डबल डिवीजन, बट द थिंग इज हियर वी आर डूइंग द डिवीजन जहां पे मैं फ्लोर वैल्यू ले रहा हूँ। सो डबल डिवीजन से कोई दिक्कत नहीं होगी, वी आर टेकिंग डिवीजन इन इंटीजर। सम ऑफ यू आर सेइंग एक्स बाई 3 - 1, क्या ये सही है? x/3 - 1, इस वाले फॉर्मूला को भी देख लेते हैं क्या इससे सही आ रहा है हमारा। तो एक बार लिख के देख लेते हैं क्या ये फॉर्मूला सही है कि नहीं। तो लेट्स से मैं वैल्यू लेता हूँ 5, एक्स मेरी 5 है, ठीक है। 1 2 3 4 5, मेरे पास 5 लेवल्स हैं। फॉर्मूले से वैल्यू क्या आएगा? 5 ÷ 3 - 1, ये वैल्यू कितनी होती है? 5 का फ्लोर डिवीजन बाई 3, इट इज 1 गाइस। तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी आ रही है? 0। तो क्या मुझे 5 लेवल कंप्लीट करने के लिए 0 ब्रेक लेने की जरूरत है? नहीं, मुझे एक ब्रेक तो लेना पड़ेगा ना 3 लेवल्स कंप्लीट करने के बाद। सो वेयर एम आई गोइंग रॉन्ग? दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, टू बी ऑनेस्ट, इज वेरी मच करेक्ट। आई रिक्वायर x/3 लेवल्स, बट इट इज फेलिंग इन विच केस? आप मुझे बताओ। ये चलेगा फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला इज अ वेरी वर्किंग फॉर्मूला टू कंप्यूट द नंबर ऑफ ब्रेक्स, बट इट इज फेलिंग वेयर? या इट इज फेलिंग एट x = 3। और कहां पे फेल कर रहा है? यहाँ x = 6 पे फेल कर गया, ठीक। या यू गाइज आर रीचिंग टू द पॉइंट। मल्टीपल्स ऑफ 3 पे ये फॉर्मूला ब्रेक कर रहा है, ये फॉर्मूला फेल कर रहा है। ये फॉर्मूला फेल कब कर रहा है? दिस फेल्स व्हेन x इज मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। ऐसा हो क्यों रहा है इसको देख लेते हैं। तो एक थोड़ा बड़े साइज का लेते हैं, इस बार मैं 9 साइज का ले लेता हूँ, बिकॉज वो भी एक मल्टीपल ऑफ 3 है। एंड हम समझते हैं कि वो फेल क्यों कर रहा है। लेट्स नंबर इट, ठीक है। फेल क्यों कर रहा है हम वो समझते हैं। यहाँ पे मैं 3 के बाद तो एक ब्रेक ले रहा हूँ, आई विल टेक अ ब्रेक आफ्टर कंप्लीटिंग 3 लेवल्स। अगेन आई विल टेक अ ब्रेक आफ्टर कंप्लीटिंग 6 लेवल्स। बट वेन आई कंप्लीट द 9th लेवल, आई डू नॉट नीड अ ब्रेक बिकॉज माई टास्क इज कंप्लीटेड। सो वहां पे मैं एक एक्स्ट्रा काउंट कर ले रहा हूं, ठीक है। तो जब x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 आ रहा है, तो मैं एक एक्स्ट्रा ब्रेक कैलकुलेट कर ले रहा हूं, विच इज इनकरेक्ट, ठीक है। इन केस ऑफ मल्टीपल ऑफ 3, आई विल डू -1, या इट्स करेक्ट। इफ x is a multiple of 3, तो number of breaks would be x/3 - 1, ठीक है। Otherwise x/3 is the number of breaks. And someone is saying, sir, we need floor division to the nearest round up and not always round down. So you are saying that we need to round up and not round down. And some of you are giving the formula x-1/3. X-1/3 is also correct. वो भी सेम ही आइडिया पे बेस्ड है कि लास्ट लेवल कंप्लीट करने के बाद अगर वो मल्टीपल ऑफ 3 है तो मुझे फिर से ब्रेक लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड समवन इज सेइंग नियरेस्ट राउंड अप, ठीक है। तो नियरेस्ट राउंड अप बेसिकली यहाँ पे अगर आप बोल रहे हो कि इफ आई हैव 5 लेवल्स, तो 5/3 को मैं राउंड अप कर दूं। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग, जीवेश? All right. But in case of 5/3 ka round up, it would give me 2 breaks. But for 5, I only require 1 break. So I don't have to do round up. मुझे राउंड डाउन ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या निकल के आया मेरा ऑब्जर्वेशन? यहाँ पे अगर x लेवल्स हैं और y मिनट्स लग रहे हैं कंप्लीट करने में, तो x इंटू वाई तो मेरा एक टाइम तो लगेगा ही। और आफ्टर 3 लेवल्स में z मिनट्स का ब्रेक ले रहा हूं। यहाँ पे दो कंडीशन बनी थी। पहली, इफ x मॉड्यूलो 3 इज इक्वल टू 0, उस केस में मेरे नंबर ऑफ ब्रेक्स कितने आए थे? x/3 - 1
otherwise, here OW stands for otherwise, simply x by 3। ठीक है, these are the number of breaks। और मुझे अगर टोटल टाइम कैलकुलेट करना है तो इन दोनों वैल्यूज को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? अगर मुझे टोटल टाइम निकालना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? ऋषभ, वैभव, वेरी गुड, प्रेम, मुझे इनको जेड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज जेड ही मेरा टाइम है जो मैं एक ब्रेक पे लगा रहा हूं। ठीक है, इसको जल्दी से कोड कर लेते हैं। या लेट्स कोड इट क्विकली। ठीक है, सो यहां पे मुझे इनपुट में क्या मिल रहा है? एक्स, वाई एंड जेड। आई विल टेक द इनपुट क्विकली। आई होप आपको इंटीजर्स का इनपुट इन अ सिंगल लाइन लेने आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आंसर कैसे निकल रहा था? सो नंबर ऑफ ब्रेक्स, ये निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या था? सिंपली एक्स बाई 3। ठीक है, बट इसमें एक कंडीशन था, इफ एक्स मॉड्यूलो 3 इज इक्वल इक्वल 0, अगर एक्स मेरा 3 से डिविजिबल है, तो नंबर ऑफ मेरा जो ब्रेक्स होगा दैट वुड बी वन लेस। ठीक है, करेक्ट एवरीवन, इज दिस करेक्ट? ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। तो टोटल टाइम इज इक्वल टू कितना होगा? पहले तो मेरा एक्स लेवल्स थे और एक्स लेवल्स को कंप्लीट करने में वाई मिनट्स लग रहे थे, तो एक्स इंटू वाई प्लस नंबर ऑफ ब्रेक्स इंटू जेड, एंड मैं क्या करूंगा? प्रिंट कर दूंगा इस टाइम को। बट एक चीज है, क्वेश्चन में दिया हुआ है टी टेस्ट केसेस, तो मुझे सेम सोल्यूशन फॉर टी डिफरेंट टेस्ट केसेस रन करना है, तो वो मैं कैसे करूंगा? वो मैं सिंपली कर दूंगा ऐसे, बाहर एक टी का लूप लगा दूंगा, टी को पहले इनपुट लूंगा। ठीक है, टी को इनपुट लिया और फिर फॉर या वाइल लूप से मैं सिंपली उसको रन कर सकता हूँ, फॉर फॉर आई इन रेंज टी। ठीक है, एंड इस सारे कोड को मैं यहां से कर दूंगा। ठीक है, तो दिस इज माई फाइनल कोड। अब इस कोड को ध्यान से देखो। डू यू थिंक इज देयर एनी एरर इन दिस पर्टिकुलर कोड, या ये कोड पूरी तरह सही है? जस्ट थिंक अबाउट इट। या लेट मी रन दिस कोड इन फ्रंट ऑफ यू। सो यहाँ पे आपके सामने आउटपुट सारे निकल के आ गए जो सही थे, सैंपल इनपुट तो सैंपल आउटपुट पास कर रहा है। बट अगेन आई विल से, इस कोड को आप ध्यान से देखो। दिस इज द अल्टीमेट प्रॉब्लम सॉल्विंग दैट आई वांट टू बिल्ड इन फ्रंट ऑफ यू, कि कोड आपको हो सकता है सही लगे बट इट कैन अगेन फेल इन सम पर्टिकुलर केस। सोचो इस बारे में, वेयर कैन दिस कोड फेल इन दिस पर्टिकुलर केस? देखते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो एक्स बाई 3 मैं कर रहा था, आई वॉज कैलकुलेटिंग दिस पर्टिकुलर वैल्यू। ठीक है, और मैं एक्स बाई 3 -1 कर रहा था जब मेरा एक्स डिविजिबल था। ठीक है, when x model 3 equals to 0। ठीक है, नाउ कंसिडर इफ x इज 1। ठीक है, अगर मेरा x इज इक्वल्स टू 1 है तो इस पर हम एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं, क्योंकि आप में से किसी ने बोला था कि अगर x की वैल्यू 1 हो गई या x की वैल्यू 2 हो गई, बेसिकली x लेस देन 3 पे फेल कर रहा है। एक बार हम चेक करके देख लेते हैं क्या सही में फेल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप में से किसी ने ये डाउट अभी जस्ट रेज किया था। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है फॉर एक्स इज इक्वल्स टू 1 and 0। ठीक है, आप में से कोई बोल रहा है एक्स इज इक्वल्स टू 1 and 0। ठीक है, सो यहाँ पे 1/3 विल कम आउट टू बी
जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मुझे ब्रेक लेने की जरूरत पड़ रही है? ब्रेक लेने की मुझे जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, ठीक है, इसको एक बार हम, ठीक है, रन करके देखते हैं। ठीक है, सो अगर आपको जो डाउट था कि एक्स लेस देन 3 पे चलेगा कि नहीं चलेगा, तो वो केस ऑटोमेटिकली हैंडल हो रहा था। एंड नाउ वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप सबको ये कोड क्लियर होगा। इस कोड को मैंने आपके सामने पूरा ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? इक्वल कॉइन्स कोड सर। ठीक है, लेट मी ओपन यू द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। लेट मी ओपन इट फ्रॉम हियर ओनली। हाँ, हाँ, हम आते हैं इस क्वेश्चन पे, एक एक करके आते हैं। ऋषभ, थैंक यू फॉर शेयरिंग द लिंक। सो यहाँ पे मुझे दिया हुआ है कि सेफ हैज एक्स कॉइन्स जिसका वर्थ 1 है, एंड वाई कॉइन्स जिसका वर्थ 2 है। ठीक है, वो इन दोनों कॉइन्स को अपने दो बेटों में बांटना चाहता है। ही वांट टू डिस्ट्रीब्यूट दीज टू कॉइन्स इन टू हिज टू सन्स दैट ही हैज, एंड ही वांट टू डू इट इक्वली। इसका मतलब क्या हुआ? इसको देखते हैं। लेट अस एक्सप्लोर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को देखते हैं। तो यहाँ पे एक्स कॉइन्स हैं एंड वाई कॉइन्स है, दो टाइप की कॉइन्स हैं। ठीक है, देर आर एक्स कॉइन्स एंड देर आर वाई कॉइन्स। ठीक है, एक्स कॉइन्स का वर्थ कितना है? 1। वाई कॉइन्स का वर्थ कितना है? 2। करेक्ट, एक्स कॉइन्स का वर्थ 1 है, वाई कॉइन्स का वर्थ 2 है। ठीक है, मुझे इन दोनों कॉइन्स को मिला के जो मनी बन रही है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है बेसिकली। ठीक है, आई वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट डेट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्स मेरा 2 है एंड वाई मेरा 4 है, ठीक है, तो टोटल मनी कितना होगा? टोटल मेरे पास मनी कितना है? दैट वुड बी 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2, दैट वुड बी 10। नाउ आई वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट दिस 10 इंटू इक्वल पार्ट्स। तो इसके इक्वल पार्ट्स क्या क्या होंगे? 10 के दो इक्वल पार्ट्स क्या होंगे? आई एम टेकिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इक्वल कॉइन्स फ्रॉम कोड सर, दिस वन इक्वल्स कॉइन फ्रॉम कोड सर। ठीक है, सो इसको अगर टू पार्ट में, इक्वल पार्ट में तोड़ना है, दैट वुड बी 5 एंड 5। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम कैसे लिख सकते हैं? क्या कोई चैट में बताना चाहेगा कि उनके दिमाग में, आपके दिमाग में सोल्यूशन क्या आ रहा है? ठीक है, सो इफ, अगर मेरी जो टोटल वैल्यू आ रही है मनी की, इफ मनी मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0, अगर मेरा पूरा मनी 2 से डिविजिबल है, तो प्रिंट करो यस, एल्स प्रिंट नो। आप में से कितने लोग को लगता है ये सोल्यूशन सही है? इज दिस सोल्यूशन करेक्ट? जस्ट टेल मी। व्हाई विल दिस सोल्यूशन नॉट वर्क? टेल मी। हाँ, मुझे बताओ, व्हाई विल दिस सोल्यूशन नॉट वर्क? ये सोल्यूशन क्यों नहीं चलेगा? ऐसे तो देखने में सही लगा। समवन इज सेइंग odd coins in y. What if x equals equal 1? अगर x equals 1 है, ठीक है, तो मेरा वो वैल्यू जो है दैट वुड नॉट कम आउट टू बी ऑल राइट। ठीक है, हाँ, मनी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसलिए मैं मनी मॉड्यूलो 2 ले रहा हूँ। तो अगर मनी मेरा 2 से डिविजिबल है, तो मैं दो पार्ट में क्यों नहीं तोड़ सकता? जस्ट टेल मी व्हाई दिस इज नॉट पॉसिबल।
Why will this fail? तो देखो, अगर मेरा x लेट से अज्यूम है 0 है, ठीक है, एंड y मेरी 3 है, ठीक है, तो मेरे पास टोटल मनी कितना होगा? टोटल मनी वुड बी 0 × 1 +3 × 2, क्योंकि वाई कॉइन्स का जो वर्थ था वो 2 था। तो टोटल मनी मेरे पास आ गई 6। बट क्या मैं 6 को दो पार्ट में तोड़ सकता हूं? दैट इज 3 and 3। इज दिस पॉसिबल हियर? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल हियर। आई कांट डिस्ट्रीब्यूट इट, बिकॉज यहाँ पे जो कॉइन्स हैं ये वर्थ इनकी 2 है। So, जो y की वैल्यू है मैं उसको तोड़ नहीं सकता हूं, ठीक है, करेक्ट। तो ये जो सोल्यूशन है मेरा, दिस विल फेल। आई होप ये सबको क्लियर है कि ये सोल्यूशन क्यों फेल करेगा। दिस सोल्यूशन विल फेल बिकॉज हो सकता है y जो कॉइन्स हैं वो ऑड हो, ठीक है। आई होप ये सबको क्लियर है, ठीक है। आई होप ये सबको क्लियर है। सर रिपीट या। सो मैंने एक सोल्यूशन सजेस्ट किया था कि मैं टोटल मनी निकाल लेता हूं। टोटल मनी कितना है? टोटल मनी इज नथिंग बट जो भी मेरे एक्स कॉइन्स हैं इंटू 1 +y × 2। अगर ये वैल्यू मेरी 2 से डिविजिबल है तो मैं बोल दूंगा कि हाँ यस प्रिंट करो। अदरवाइज मैं बोल दूंगा कि डिवीजन पॉसिबल नहीं है तो प्रिंट नो। बट आई एम सेइंग दिस सोल्यूशन विल फेल। एंड ये सोल्यूशन क्यों फेल करेगा? लेट्स अज्यूम मेरी एक्स वैल्यू 0 है एंड वाई जो मेरे कॉइन्स हैं डेट आर ऑड। आप ऑड नंबर ऑफ कॉइन्स को तो दो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो ना। हेंस दिस पर्टिकुलर सोल्यूशन विल फेल, ठीक है। अब इसको हम प्रॉब्लम को अच्छे से डाइसेक्ट करते हैं कि इसका सही सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, अगर मेरा एक्स ऑड है, एक्स क्या है? कॉइन्स जिनका वर्थ 1 है। एक्स मेरी वो कॉइन है जिसका वर्थ 1 है। अगर वो ऑड टाइम्स प्रेजेंट है तो कैन आई डिस्ट्रीब्यूट द टोटल मनी इन 2 पीपल इक्वली? कैन आई डिस्ट्रीब्यूट इट? नो, आई कान डिस्ट्रीब्यूट इट बिकॉज बिकॉज जो मेरी मनी होगी दैट वुड बी x × 1 +2 × y, ठीक है। y की वैल्यू लेट्स अज्यूम कुछ भी है, दिस y इज एनीथिंग, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बट ये जो x होगा ये तो ऑड होगा, एंड 2y 2 × y दिस वुड बी अ इवन वैल्यू। सो ऑड प्लस इवन इज व्हाट? ऑड प्लस इवन को ऐड करने पे क्या होता है? ऑड होता है। एंड कैन यू डिस्ट्रीब्यूट एन ऑड नंबर इनटू टू इक्वल नंबर्स? कैन यू डिस्ट्रीब्यूट इट? नो। सो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि अगर मेरा x मॉड्यूलो 2 1 के इक्वल है, अगर मेरा x ऑड है, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि नॉट पॉसिबल, ठीक है। यू जस्ट हैव टू प्रिंट नो। यहां तक आई होप सबको क्लियर है, करेक्ट। किसी को कोई डाउट यहां तक? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में। सो अब मेरा वैल्यू क्या हो सकता है? अब मेरा x तो फॉर श्योर इवन होगा, ठीक है। x तो मेरा फॉर श्योर इवन होगा, ठीक है। x अगर मेरा अब इवन वैल्यू है तो मुझे y की वैल्यू देखनी पड़ेगी। अब x फॉर श्योर इवन मुझे बोल दिया, अब मुझे y देखनी पड़ेगी। आप बोल रहे हो अगर x और y इवन होना चाहिए, बट क्यों? टेल मी द रीजन। टेल मी द रीजन वाई इवन ही क्यों होना चाहिए, ठीक है। x तो चलो इवन है फॉर श्योर।
वाई ऑलवेज इवन ही होगा, वाई ऑड भी हो सकता है। सब वाई की वैल्यू देखते हैं, ठीक है। ठीक है, एक्स अब मेरा इवन है, तो एक्स को मैं हमेशा दो पार्ट में ब्रेक कर सकता हूं, x/2 एंड x/2। ठीक है, x/2 एंड x/2 में तोड़ सकता हूं। अभी जो y है, मुझे इसको दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ना है। ठीक है। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे आगे? अगर y को हमें दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ना है, तो हम फिर इसको आगे कैसे प्रोसीड करेंगे? क्या मैं डायरेक्टली चेक लगा सकता हूँ कि यहाँ पे जो y की वैल्यू बच रही है, क्या ये दो इक्वल पार्ट्स में टूट रहा है कि नहीं? सी यू ऑल आर सेइंग y मॉड्यूलो 2 इज इक्वल 0। ये वाली कंडीशन मुझे चेक कर लेनी चाहिए। शुभम इज सेइंग कि जस्ट रिपीट इट वंस। तो शुभम, इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एक्स कॉइन्स दिया हुआ है जिसका वर्थ 1 है, एंड वाई कॉइन्स दिया हुआ है जिसका वर्थ 2 है। मुझे बताना है कि जो टोटल वैल्यू बन रही है एक्स कॉइन्स ऑफ वर्थ वाई एंड वाई कॉइन्स ऑफ वर्थ 2 को पिक करके, क्या मैं उस अमाउंट ऑफ मनी को दो लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं कि नहीं? ठीक है। यस, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है। हाँ, बिकॉज वाई अगर ऑड हुआ तो क्यों? ठीक है, अब इसमें कुछ टेस्ट केसेस हम लेते हैं। ठीक है, लेट्स से मेरा एक्स की जो वैल्यू थी डेट वाज 6, एंड लेट्स से मेरी वाई की जो वैल्यू थी डेट वाज लेट्स से 3। ठीक है, यहाँ पे तो वाई की जो वैल्यू है डेट इज ऑड, यहाँ पे वाई की वैल्यू डेट इज ऑड, बट मैं दो यहाँ पे इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ कि नहीं? कैन आई डिस्ट्रीब्यूट इन टू इक्वल पार्ट्स? जस्ट टेल मी यस और नो। कोई बोल रहा है नो, कोई बोल रहा है यस। थिंक अबाउट इट। अगर x इक्वल टू 6 है एंड y इक्वल टू 3 है, तो मैं दो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ कि नहीं? सो आप बताओ, ये टेस्ट केस में आउटपुट क्या होगा? लेट आई मीन अनेबल टू सी, जस्ट गिव मी अ मिनट। जस्ट गिव मी अ मिनट। द चैट इज नॉट विजिबल टू मी। या, am I audible to you all? Hello everyone, am I audible to you all? All right, yeah, let's get started. या, सो यहाँ पे हम जो टोटल वैल्यू बन रही है मनी की, that is coming out to be 6 plus 2 into 3, that is 12, and I can equally distribute it in the case of इधर x कॉइन्स आप दे दो 6 कॉइन्स,
इधर वाई के 3 कॉइन्स दे दो, ठीक है। यू कैन डू इट लाइक दिस पर्टिकुलर केस। सो वाई मॉड्यूलो 2 मेरा 1 निकल के आया है, बट स्टिल इट इज पॉसिबल टू डिस्ट्रीब्यूट इन दिस पर्टिकुलर केस। ठीक है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे कि चीजें कैसी हो रही हैं। ठीक है, अब इसका हम सोल्यूशन को डिस्कस करते हैं। सो वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ऑड भी हो सकती है, इवन भी हो सकती है। हम स्टिल इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक्स इज इक्वल टू 6। हाँ, यहाँ पे एक्स की वैल्यू मैंने 6 ले रखी थी, एंड वाई की वैल्यू मैंने यहाँ पे 2 ले रखी थी, तो मेरा टोटल वैल्यू 12 आया था, एंड इट वाज कमिंग आउट टू बी पॉसिबल फॉर दिस पर्टिकुलर केस। ठीक है, तो आप में से कोई बोल रहा है कि y इज ऑड एंड x इज जीरो। सो y इज ऑड एंड x इज जीरो। इस वाले केस को हम जल्दी से देख लेते हैं। ये वाला केस हमने ऊपर भी ले रखा था, यहाँ पे अगर आपको याद होगा। जल्दी से ले लेते हैं। y अगर मेरा 3 था एंड x जीरो था, तो इस केस में तो पॉसिबल नहीं था। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। हम कुछ और केस लेके देख लेते हैं। यहाँ पे पॉसिबल नहीं था, नॉट पॉसिबल था। ठीक है, ठीक है, इट वॉज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो या सो इट वॉज नॉट पॉसिबल इन दिस पर्टिकुलर केस। बाकी अगर मेरी x की कोई भी इवन वैल्यू हुई, ठीक है, x की मेरी बाकी कोई भी इवन वैल्यू हुई, एंड y की मेरी लेट्स से कुछ भी वैल्यू हो गई, कैन आई से द डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज पॉसिबल? कैन आई से दिस द डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज पॉसिबल? अगर मेरी x की वैल्यू जीरो नहीं है, x इज समथिंग इवन, एंड y की वैल्यू मेरी कुछ भी है, तो डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है। कैन आई से दिस? फिर आपको ये ऊपर भी यहाँ पे ऑब्जर्वेशन दिख रहा था कि मेरी x की वैल्यू 6 थी, y की वैल्यू 3 थी, आई कैन इजीली डिस्ट्रीब्यूट इट। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? या सो आई होप ये वाला चीज आपको क्लियर हो गया होगा। तो मेरा केस कैसे बनेगा? सबसे पहले मैं चेक कर लूंगा इफ x मॉड्यूलो 2 इक्वल्स 1। ठीक है, सो आई विल सिंपली प्रिंट नो, नॉट पॉसिबल, डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं है। फिर मैं चेक कर लूंगा एलिफ ब्लॉक में आकर कि क्या मेरा x की जो वैल्यू है वो जीरो है। ठीक है, एंड मेरा जो y का वैल्यू है इज दैट एन ऑड वैल्यू। ठीक है, अगर ऐसा है तो उस केस में मैं क्या बोल दूंगा? प्रिंट नो। एंड बाकी सारे केस में मैं क्या बोल सकता हूँ? प्रिंट यस। ठीक है, यही तीन तो केस हमने डिस्कस किए थे कि x अगर जीरो है एंड y मेरा कोई ऑड वैल्यू है, तो ऑड कॉइन्स को तो मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता हूँ। उस केस में मैंने नो प्रिंट कर दिया, बाकी सारे केस में यस प्रिंट हो रहा था। आई होप ये सबको क्लियर है। डू यू ऑल वांट मी टू कोड दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम? डू यू वांट ऑल टू कोड दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, या लेट मी कोड इट वेरी क्विकली? सो मैं टी का इनपुट ले लेता हूँ। टी टेस्ट केसेस हैं, एंड टी के अंदर मुझे क्या वैल्यू मिल रही है? दो वैल्यू मिल रही है, एक्स कॉमा वाई। ठीक है, एक्स और वाई का मैंने यहाँ पे इनपुट ले लिया है। अब मुझे बस चेक कर लेना है। अब मुझे यहाँ पे बस चेक कर लेना है कि एक्स मेरी ऑड वैल्यू है, तो मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा नो। ठीक है,
ठीक है, एलिफ ब्लॉक में मैं आया, मैं चेक कर लूंगा, अगर मेरी एक्स की वैल्यू 0 है एंड जो मेरा वाई है दैट इज एन ऑड नंबर, तो मैं अगेन प्रिंट कर दूंगा नो। अदरवाइज मैं क्या प्रिंट करूंगा? यस, so this is my final code. Here are the test cases. Let me run it for you. Yeah. So this was the particular problem that I solved in front of you. Yeah. I hope it is clear to everyone. Can I repeat anything? Should I repeat anything? Yeah. So यहाँ पे इस प्रॉब्लम में बस मैं 2 मिनट में रिपीट कर देता हूँ। सो मुझे एक्स एंड वाई दो टाइप से कॉइन मुझे दिए हुए थे। जो एक्स कॉइन था उसका वर्थ था 1 एंड जो वाई कॉइन था उसका वर्थ था 2। मुझे इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो मुझे दिखा कि जिस कॉइन का वर्थ 1 है, अगर वो ऑड नंबर टाइम्स अकर कर रहा है तो इक्वल डिवीजन तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि जो टोटल सम बनेगा फाइनली वो ऑड होगा। फिर मुझे एक और चीज दिखा कि जो मेरे पास वाई कॉइन्स हैं, अगर वो ऑड हो गए और एक्स मेरा 0 है, तब भी इक्वल डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा। फिर फाइनली जाके मुझे दिखा कि y की कुछ भी वैल्यू हो और x मेरा एक इवन वैल्यू हो अपार्ट फ्रॉम 0, तब मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हमेशा कर सकता हूं। एंड फाइनली मैंने ये कोड लिख दिया। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, हम आगे डाउट्स में मूव कर सकते हैं। समवन हैज आस्क्ड कि मैक्स कहाँ यूज करना होता है। सो मैक्स फंक्शन तब यूज होता है जब हमें पता करना होता है कि गिवन वेरिएबल्स के बीच में जो बड़ी वैल्यू है वो कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल आई एम गिवन ए एंड बी, तो मैं अगर कंपेयर करना है तो मैक्स ऑफ ए कॉमा बी मैं ले सकता हूँ, वो मुझे बता देगा ए कॉमा बी में बड़ा वैल्यू कौन सा है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, किसी ने पूछा है प्रिंट फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन। या लेट मी ओपन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। स्मॉल फैक्टोरियल्स, डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन द स्मॉल फैक्टोरियल्स क्वेश्चन? प्रिंट फैक्टोरियल्स, वेटिंग टाइम। अच्छा, आप में से बहुत लोग बोल रहे हैं कि प्राइमलिटी टेस्ट में पढ़ा दूं, ऐसा आप बोल रहे हो। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन ऑल। ठीक है, तो प्राइमलिटी टेस्ट को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लेट मी रिवाइज द प्राइमलिटी टेस्ट in front of all of you because many of you are asking it. Rishabh, Lucky also said it, and you all are repeating it very number of times. So let me just repeat it in front of you कि प्राइमलिटी टेस्ट होता क्या है। सो प्राइमलिटी टेस्ट मुझे बताता है कि इफ अ नंबर इज प्राइम और नॉट। एक नंबर प्राइम है कि नहीं, बट इससे पहले हमें जानना होगा कि प्राइम नंबर क्या होता है। सो अ नंबर इज प्राइम इफ इट इज डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ। अगर वो वन इटसेल्फ से क्या मतलब है? अगर लेट से मुझे नंबर दिया हुआ है एन, तो वो बस वन से डिविजिबल होगा और खुद से एन से डिविजिबल होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट से मैं एक नंबर लेता हूं, कोई भी रैंडम नंबर ले लेता हूं, लेट से 13। तो 13 इज डिविजिबल बाई 1 एंड 13 ओनली, तो ये एक प्राइम नंबर है। सो दिस इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, अब लेट से मैं 15 लेता हूं, तो 15 1 से डिविजिबल है एंड 15 से डिविजिबल है। सो इज दिस अ प्राइम नंबर? वाई इट इज नॉट अ प्राइम नंबर? बिकॉज ये 115 से भी डिविजिबल है, बट यहाँ पे कंडीशन हो रही है कि ओनली डिविजिबल इफ इट इज ओनली डिविजिबल बाय वन एंड सेल्फ।
बट 15 इज डिविजिबल बाई 3 एज वेल एज 5, अदर नंबर से भी डिविजिबल है, इसीलिए दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो 15 इज नॉट अ प्राइम नंबर। सो अगर हम 1 से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, 13 तक हम आए और हम 13 पे खड़े होकर 13 के लिए प्राइमलिटी टेस्ट चेक कर रहे हैं। तो 13 बस 1 से डिविजिबल होना चाहिए और 13 खुद से डिविजिबल होना चाहिए। बीच में जो ये नंबर्स आपको दिख रहे हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इनमें से किसी से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। और ये जो नंबर्स हैं इन पे चेक करने के लिए मैं क्या यूज कर सकता हूँ, मैंने ऐसा क्या पढ़ा है जिससे मैं इजीली चेक करता हूँ जो बीच के नंबर्स हैं। ये जो बीच के नंबर्स हैं इनको एक साथ तो मैं चेक नहीं कर पाऊंगा, एक एक करके चेक करना पड़ेगा। बट एक एक चीज मैनुअली चेक ना करनी पड़े उसके लिए हमने कुछ पढ़ा है। इतने सारे नंबर्स को एक साथ चेक करने के लिए हमने कुछ पढ़ा है, क्या पढ़ा है? हमने लूप पढ़ा है। सो हम लूप से चेक कर सकते हैं कि ये चीज होल्ड करता है कि नहीं। क्लियर है सबको? ठीक है। सो मैं यहाँ 2 से स्टार्ट कर रहा हूं और कहां तक जा रहा हूं? n-1 तक। मैं 2 से जा रहा हूं, n-1 तक जा रहा हूं। अगर मुझे बीच में ऐसा कोई भी नंबर मिल गया जो मेरे n को डिवाइड कर रहा है तो मैं क्या बोल सकता हूं? n इज नॉट अ प्राइम। जैसे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मेरे 1 to 10 नंबर्स लिखे हुए हैं एंड मैं चेक कर रहा हूं इफ 10 इज अ प्राइम और नॉट। मुझे चेक करना है कि 10 एक प्राइम नंबर है कि नहीं। तो मैं 2 से स्टार्ट करूंगा, 9 तक जाऊंगा और बीच में देख लूंगा कोई नंबर क्या 10 को डिवाइड कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 विल डिवाइड 10 एंड 5 विल डिवाइड 10, so hence 10 is not a prime। ठीक है। इसको अगर हमें कोड में लिखना है, अगर हमें इसको कोड में लिखना है, ठीक है, तो हम कैसे लिख सकते हैं? फॉर स्टार्ट कहां से हो रहा है? फॉर आई इन रेंज। ये लूप स्टार्ट कहां से हो रहा है? स्टार्ट कहां से हो रहा है? 2 से। जा कहां पे तक रहा है? 1 से नहीं स्टार्ट हो रहा, ये 2 से स्टार्ट हो रहा है। 1 से तो पता ही है कि डिविजिबल होगा। चेक कहाँ करना है? 2 से। एंड कहां तक जा रहा है? कौन सा नंबर कंसीडर होगा? हम किस नंबर को कंसीडर करेंगे? देखो 10 से तो डिविजिबल होगा ही 10, वो तो मुझे पता है, दैट तो आई ऑलरेडी नो। एन तो एन से डिविजिबल होगा ही होगा। मैं कहां तक जाना चाहूंगा? मैं n-1 तक चेक करना चाहूंगा। तो यहाँ पे फॉर लूप में ये लूप एंड कहां पे होगा? लूप एंड होगा एन पे। एन पे एंड होगा तो मैं n-1 तक चेक करूंगा। तो यहाँ पे मैं n लिखूंगा कि n पे आके खत्म कर दो, n-1 तक चेक करो। ठीक है, करेक्ट। अब मुझे कहीं बीच में अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होते हुए दिख गई, इफ n मॉड्यूलो i इक्वल 0, अगर मुझे बीच में कहीं भी ऐसा दिख गया कि n तो i से डिविजिबल हो गया, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ? प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा नंबर नॉट अ प्राइम। करेक्ट, करेक्ट। ठीक है, तो ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच आपको समझ में आ गई मैंने ये किया क्यों है? आई होप सबको क्लियर हो गया ये वाली अप्रोच। ठीक है। और यहाँ पे मैं 2 से लेके n-1 तक आइट्रेट कर रहा हूँ। इन अ वे यू कैन से आई एम आइट्रेटिंग n टाइम्स। ठीक है, आई एम आइट्रेटिंग n टाइम्स। सो इसको चेक करने में मैं n टाइम्स आइट्रेट कर रहा होता हूँ। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। करेक्ट। या आई एम कमिंग टू दैट। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। करेक्ट। तो मुझे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कुछ कि फॉर 10 द फर्स्ट डिवाइजर दैट इज आई एम गेटिंग इज 2, द सेकेंड डिवाइजर दैट आई एम गेटिंग इज 5। ठीक है।
The first divisor that I am getting is 2. The second divisor that I am getting is 5. Someone is saying कि 2 से लेकर n to the power 20.5. Rishabh, can you please just give it again? Yeah, 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 got it. Yeah. So यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये n है. If this particular number is n, तो इसका डिवाइजर जो लास्ट वाला था वो 5 था. 6, 7, 8, 9 मेरे डिवाइजर नहीं थे. ठीक है. और 10, जो 5 था वो लास्ट डिवाइजर था. मैं कुछ ऑब्जर्वेशन आपको दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ. जैसे मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. और 14 जो मेरे डिवाइजर्स हैं दैट आर 2 एंड दैट आर 7. यहाँ पे आपको 14 n दिख रहा है और यहाँ पे आपको 7 दिख रहा है. दैट इज द लास्ट डिवाइजर. करेक्ट. करेक्ट. यहाँ पे n की वैल्यू 10 थी तो लास्ट डिवाइजर था मेरा 5. यहाँ n की वैल्यू 14 है, लास्ट डिवाइजर इज 7. तो यहाँ पे मैं क्या ऑब्जर्वेशन दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ? कैन एनीवन थिंक अबाउट इट? जो मेरा बिगेस्ट डिवाइजर हो सकता है दैट कैन बी n/2. दिस कैन बी माई लार्जेस्ट डिवाइजर. क्या n/2 से कभी बड़ा कोई डिवाइजर हो सकता है? सोच के आप देखो, प्रैक्टिकली सोच के देखो. क्या n/2 से बड़ा कोई डिवाइजर हो सकता है? अपार्ट मतलब वो नंबर खुद हो सकता है बट उसको हटा के. यहाँ पे 10 खुद को डिवाइड कर देगा बट इसको हटा के क्या हो सकता है कोई नंबर? नहीं हो सकता है. क्यों नहीं हो सकता? एक बार लॉजिकली सोचो. व्हाई डू यू थिंक नो डिवाइजर कैन बी ग्रेटर देन n/2? हाफ से ज्यादा नहीं हो सकता, बट क्यों नहीं हो सकता? अगर लेट से कोई नंबर x है, इसको प्रूव करते हैं. कोई नंबर x है, ठीक है, विच इज नॉट इक्वल्स टू n, एंड वो x को डिवाइड कर रहा है. सो इट मस्ट बी ग्रेटर देन n/2. ठीक है. n/2 से ग्रेटर होगा तो x में कुछ तो मल्टीप्लाई करना होगा ना कि n के इक्वल हो जाए. x में मुझे कुछ तो मल्टीप्लाई करना होगा ना कि वो ग्रेटर हो जाए. रिपीट होगा हाफ के बाद. करेक्ट. रिपीटिशन आ जाता है. ठीक है. बिकॉज इट हैव्स टू बी मस्ट बी इन बिटवीन 0 to 1. हाँ, ठीक है. मेरा x अगर n के इक्वल नहीं है, जो मेरा डिवाइजर है वो n के इक्वल नहीं है, ठीक है, और x मेरा, मैं ये भी बोल रहा हूँ कि डिवाइजर n/2 से ग्रेटर है, तो मुझे उस डिवाइजर x में कोई नंबर y मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो वो जाके n के इक्वल हो जाएगा. ठीक है. ठीक है. बट ये नंबर y जो मेरा है वो मिनिमम कितना हो सकता है? दिस कैन बी मिनिमम 2. ये नंबर मेरा मिनिमम 2 हो सकता है. और मेरा जो x था वो n/2 से ग्रेटर नंबर था. दिस वॉज अ नंबर दैट वॉज ग्रेटर देन 2. तो n/2 प्लस लिख सकते हैं. ओवरऑल जो नंबर है वो मेरा n प्लस हो जाएगा, मतलब n से ग्रेटर हो जाएगा. एंड दैट कैन नॉट बी इक्वल टू n. यहां पे मैं प्रूव करने का ट्राई कर रहा हूं कि अगर मैं ऐसा कोई डिवाइजर लेने गया जो n/2 से बड़ा है और n के इक्वल नहीं है, तो ये मैथमेटिकली पॉसिबल है ही नहीं. दिस इज नॉट मैथमेटिकली पॉसिबल. एंड हियर इज द प्रूफ. बिकॉज इफ आई ट्राई टू डू दैट, मेरा जो नंबर है वो n को क्रॉस कर जाएगा. वो मैथमेटिकली पॉसिबल है ही नहीं. मेरा जो लार्जेस्ट डिवाइजर हो सकता है दैट कैन एट मैक्स बी n/2. तो यहाँ पे जो मैंने लूप लिखा है, अगर मैं n/2 तक भी चलाऊं, इट वुड बी करेक्ट. एंड सिंस n/2 को कवर करना है तो n/2 + 1, ये मेरा फाइनल लूप बनेगा. एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट. n/2 + 1, दिस इज माई फाइनल लूप दैट विल ऑल्सो वर्क. तो दिस इज द कोड फॉर प्राइमेलिटी टेस्ट. आई होप सबको क्लियर होगा. या आप में से कोई बोल रहा है कि n/2 के जगह
आप में से कोई बोल रहा है n/2 की जगह n रूट भी लिख सकता हूँ, मतलब √n भी लिख सकता हूँ बेसिकली। सो इसके बारे में एक बार आप सोचना, मैं √n क्यों लिख सकता हूँ। दिस थिंग इज करेक्ट कि अगर इस लूप को मैं यहाँ पे हटा के ऐसा कुछ लिख दूं, एंड दैट दिस √n इन टर्म्स ऑफ पाइथन इट इज रिटन लाइक दिस, फिर भी ये सही है। तो आप इसको सोचना क्यों सही है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, जस्ट थिंक अबाउट इट वाई दिस इज करेक्ट। मैं इसके जगह ये भी लिख सकता हूँ कि मैं रूट एन तक के नंबर से क्यों कंसिडर करूंगा, फिर भी क्यों सही है। थिंक अबाउट इट, क्योंकि √10 तक में सारे डिवाइसेस कवर हो जाते हैं, बट कैसे हो जाते हैं, जस्ट थिंक अबाउट इट। इसके बाद रिपीट होगा, हाँ रिपीट होता है, बट किस वे में रिपीट होता है, थिंक अबाउट इट। यू आर वेरी करेक्ट। जैसे यहाँ पे 10 है, 10 का रूट कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 3। तो 3 के पहले मुझे पहला डिवाइजर मिल गया 2, एंड 2 से ही मुझे दूसरा डिवाइजर मिल जाएगा 5 बाई डूइंग 10/2। तो वो रिपीट ही होता है, बट ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, इसीलिए मैं यहाँ पे √10 भी लिखूंगा तो सही है। जस्ट थिंक अबाउट इट। मैं यहाँ पे बस आपको बता रहा था, जस्ट आई वाज लेटिंग यू नो कि दिस इज ऑल्सो करेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो द ऑप्टिमल अप्रोच एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन, मोर ऑप्टिमल अप्रोच। इससे भी ऑप्टिमल अप्रोच होता है प्राइमलिटी टेस्ट का, वो हम आगे पढ़ेंगे नंबर थ्योरी में। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। ठीक है एवरीवन, सो आई थिंक वी कैन नाउ वाइंड अप दिस सेशन। So, yeah, so I think we can wind up this session now. And thank you all for asking all the doubts. I hope I was able to explain the doubts that you asked. And I hope आपको जो भी क्वेश्चन are डिस्कस हुए, जो भी मैंने आपको प्राइमरिटी टेस्ट पढ़ाया, होप आप सबको समझ में आया है। ठीक है, तो थैंक यू ऑल एंड वी विल मीट सून फॉर another lecture or doubt solving session only। ठीक है एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर, बाय।